In this video, I am going to explain how to create a summary task, how to display summary task and its subtask, and how to delete task and summary task. In this example, under task name column, we have project deliverables, procure hardware, test hardware, and procure software tools. These four activities are related to purchase and test systems. Write and program, test and debug. These two activities are related to the development of the system and obviously install, training and acceptance. These three activities are related to the implementation of the system. Summary tasks help you organize project work. They can represent phases, work performed by different groups, or tasks needed to complete project deliverables. So let's start by inserting a new task, summary task, for existing task in our task list. To do that, you need to select procure hardware, test hardware, and procure software tools. Now I can go to task tab and under insert section, you just click summary task. When you will click on the summary task, it will create a new row above these three tasks. So it has created a new row with a summary task name. So यहाँ पे आप क्या करेंगे? You can assign any name to it. For instance, मैं इसको नेम दे देता हूँ परचेज एंड टेस्ट। जब मैंने ये इसको परचेज एंड टेस्ट दिया तो आप यहाँ पे देखें इसने ऑटोमेटिकली उसको समरी कर दिया 10 days. इट मीन्स दैट दीज थ्री एक्टिविटीज विल टेक 10 days to complete. And how it will take 10 days to complete, whereas procure hardware is taking 2 days to complete, test hardware activity is taking 8 days to complete, and procure software tools activity will take 10 days to complete. So 10, 8, 18 plus 2, that becomes 20. So how it is calculating that it will take 10 days to complete? Because activity number 5, that is procure software tools, will start on 13th of May 2020. Similarly, your another activity procure hardware will start on 13th May 2020, and test hardware will start right after 2 days of the procure software tools. So जो ये एक्टिविटीज़ आपकी चल रही हैं ये बेसिकली पैरेलल चल रही हैं, सिर्फ डिले आ रहा है इस एक्टिविटी को। ये 2 days बाद जब कंप्लीट होगी तो फिनिश टू स्टार्ट रिलेशनशिप के अकॉर्डिंगली ये अगले दिन शुरू हो जाएगी, डेट इज़ 15th of May. सो जब ये एक्टिविटीज़ स्टार्ट होंगी तो आप देखें इन तीनों एक्टिविटीज़ का जो स्टार्ट डेट है 13 है और इसका 15 है, और ये एक्टिविटीज़ मैक्सिमम जो ख़त्म हो रही हैं वो जाके हो रही हैं 26 of May को। सो प्रोजेक्ट आपका बेसिकली कैलकुलेट करता है 13 to 26 को, इसीलिए इसने यहाँ पे 10 days के दिया। अब आप परेशान हो रहे होंगे कि 13 में जब 26 ऐड करें तो ये तो लगभग कोई 12-13 दिन बन जाते हैं, तो फिर ये इसको 10 days क्यों कह रहा है? क्योंकि आप देखें यहाँ पे बीच में संडेज भी आ रही हैं, तो जब संडेज एंड सैटरडे जो ऑफ डेज आ रहे होते हैं प्रोजेक्ट समरी टास्क में उन डेज को कैलकुलेट नहीं करता। तो ये कौन से डेज होते हैं? ये आपके वर्किंग डेज होते हैं जिसके ऊपर आपकी प्रोजेक्ट में कैलकुलेशंस चल रही होती हैं। फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स चेंज द डेट of procure software tools. Look at here, both activities will finish on 26th of May 2020. Let's say that I'm going to start this activity on 27 days. Fine. जब 27th of May, जब मैं 27th of May को मैं इंटर करूँगा तो it will ask me that shall I move my this task इसके बाद कर दें, तो मैं जब ओके प्रेस करूँगा तो ये इसको ऑटोमेटिकली 27 से स्टार्ट करेगा और 10 days में कंप्लीट करेगा। अब आप टॉप पे देखें क्या हो गया, 20 days हो चुका है। तो इस वजह से आपका जो समरी टास्क होता है वो बहुत यूज़फुल होता है, इससे आपकी जितने भी सब टास्क होते हैं वो समराइज हो जाते हैं और आप टॉप पे स्टार्ट डेट और फिनिश डेट अपने तीनों टास्क चार जितने भी आप टास्क असाइन करें उसकी आप जो समरी डेट्स होती हैं वो आपको वेरी वेरी क्लियरली नज़र आ रही होती हैं। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि मैं वापस चला जाऊँ अपने प्लान पे। दूसरा जो समरी टास्क का एडवांटेज होता है, आप अपनी एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड एंड कोलैप्स कर सकते हैं।
फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखें ये कोलैप्स हो गया, परचेस एंड टेस्ट एक्टिविटीज़ जो हैं हाइड हो गई। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखें अब ये प्रोक्योर हार्डवेयर, टेस्ट हार्डवेयर एंड प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स, ये एक्टिविटीज़ मेरे सामने दोबारा यहाँ पे आ गई। और यहाँ पे ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस इस तरह से कर रहा है कि जो आपका जो टास्क मोड कॉलम में जो इसकी सेटिंग हुई हुई है वो ऑटो स्केड्यूल पे हुई हुई है, मैनुअल पे नहीं हुई। तो अगली एक्टिविटीज़ राइट एंड टेस्ट के लिए मैं एक कोर्स समरी टास्क क्रिएट करना चाहता हूँ जिसका मैं नाम रखना चाहता हूँ डेवलपमेंट। सो टू क्रिएट अनदर समरी टास्क क्लिक ऑन टास्क टैब एंड अंडर इंसर्ट सेक्शन क्लिक ऑन समरी टास्क। जब समरी टास्क में मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इस टास्क को मैं नेम दे देता हूँ डेवलपमेंट। जब मैंने डेवलपमेंट टास्क यहाँ पे क्रिएट कर दिया तो यू कैन सी हियर इट इज टेकिंग 67 डेज टू कंप्लीट। आपके 45 ये एक्टिविटी स्टार्ट हो रही है 27 टू 28 ऑफ जुलाई और ये 29 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होगी और कंक्लूड होगी 27 ऑफ। दैट्स वाई 45 प्लस 22 बिकम्स 67 डेज। अब यहाँ पे बिल्कुल ये सेपरेट इसलिए ले रहा है कि ये ओवरलैप नहीं हो रही है एक्टिविटीज़। एक एक्टिविटी ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू होगी, यानी राइट प्रोग्राम एक्टिविटी जब फिनिश होगी तो टेस्ट एंड डिबग एक्टिविटी स्टार्ट होगी। यहाँ पे प्रोक्योर हार्डवेयर एंड प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स सेम डे पे स्टार्ट हो रही थी, इसीलिए इसने इसको 20 डेज नहीं कहा, 10 डेज का है, क्योंकि इनकी स्टार्ट डेट और फिनिश डेट यहाँ पे ऐसी थी। डेवलपमेंट आपके जो समरी टास्क है यहाँ पे राइट प्रोग्राम एंड टेस्ट एंड डिबग जो एक्टिविटीज़ थी ये बैक टू बैक एक्टिविटीज़ थी, यानी राइट प्रोग्राम एक्टिविटी जब कंप्लीट हुई उसके बाद टेस्ट एंड डिबग एक्टिविटी इनिशिएट। अब यहाँ पे देखें समरी टास्क में मैं आगे स्क्रॉल करता हूँ और यहाँ पे जो मेरा समरी टास्क का बार है जो मुझे नज़र आ रहा है वो कुछ ऐसे है। मैं थोड़ा सा इसको मिनिमाइज कर दूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। यहाँ पे आप देखें ये जो आपका आइकन बन जाता है, ये जो साइन है इसको कहा जाता है समरी टास्क, ठीक है जी। यानी ये एक्टिविटी और ये दो एक्टिविटीज़ जो हैं इसका समरी टास्क का नाम है डेवलपमेंट विच विल टेक 67 डेज टू कंप्लीट एंड विल स्टार्ट ऑन 27th ऑफ मई एंड विल कंक्लूड ऑन 27th ऑफ अगस्त 2020। लेट्स सपोज मैं इस एक्टिविटी को मैनुअल स्केड्यूल कहता हूँ, मैंने इसको मैनुअल स्केड्यूल असाइन कर दिया। अब यहाँ पे देखें इस एक्टिविटी में इसका जो कलर है वो चेंज हो चुका है। पहले इसका कलर जो था कोई भी नहीं था, सिंपली आपकी एक ब्रैकेट ओपन हुई हुई थी समरी टास्क की। लेकिन जब मैंने इसको मैनुअल स्केड्यूल पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखें ग्रीन कलर में एक बार क्रिएट हो गया। ये बार आइडेंटिफाई करता है कि ये जो समरी टास्क है ये मैनुअल स्केड्यूल टास्क है, ऑटो स्केड्यूल नहीं है। अब मैनुअल स्केड्यूल कैसे हम यूज़ करते हैं, उसका डिफरेंस क्या है और किन हालात में हम यूज़ करते हैं। फॉर इंस्टेंस आपकी मैनेजमेंट आपको कहती है कि यू नीड टू फिनिश राइट एंड प्रोग्राम एंड टेस्ट एंड डिबग एक्टिविटी विद इन 70 डेज नॉट 67। तो मैं यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जाऊँगा और मैं इसको 70 डेज कर दूंगा। जब मैं 70 प्रेस करूंगा तो अब देखें यहाँ पे जो आपका ब्रैकेट आपकी जो बनी हुई है ब्लैक कलर में ये थोड़ी सी एक्सपेंड हो गई है। सो यहाँ पे मेरे पास जो है तो थोड़े से मुझे एक्स्ट्रा डेज मिल रहे हैं। जब मैं अपनी एक्टिविटी कंप्लीट कर रहा हूँगा तो मुझे ये पता होगा कि माई these two activities will take 67 days to complete, whereas my deadline is to complete my work in 70 days. So it will help the project manager to effectively lead the project work. अब for instance आपकी मैनेजमेंट आपको कहती है कि you need to complete this work within 65 days। जब मैं 65 डेज के लिख के जो ही मैं इंटर की प्रेस करूँगा सो यू विल सी ताकि ये जो है यहाँ पे रेड हो जाएगा। अब ये रेड हो गया, इसका क्या मतलब है कि आपका जो समरी जो एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोजेक्ट दोनों एक्टिविटीज़ यानी राइट एंड टेस्ट एक्टिविटीज़ दोनों फिनिश होनी चाहिए 65 डेज में, जबकि ये दोनों एक्टिविटीज़ ऑल टुगेदर ले रही हैं 67 डेज। तो यहाँ पे इसने रेड लाइन इसलिए बार शो कर दिया है ताकि ये आपको आइडेंटिफाई कर सके, पॉइंट आउट कर सके कि यहाँ पे थोड़ा सा आपकी प्रोजेक्ट की प्लानिंग में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इसको आप फिक्स कर लें। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि चलें हमने मेरी टीम के साथ मीटिंग हुई और हमने डिसाइड किया कि ये एक्टिविटी में जो है 45 की बजाय 43 डेज में कंप्लीट करूँगा, तो 43 लिख के जो ही मैं इंटर की प्रेस करूँगा तो अब देखें यहाँ पे सिनेरियो फिर चेंज हो गया, इसने इसको ग्रीन लाइन दे दिया, यानी आपकी ये दोनों एक्टिविटीज़ बिल्कुल सेफ मोड में एग्जीक्यूट हो रही हैं। सो ये एडवांटेज है समरी टास्क का और ऑटो स्केड्यूल टास्क का।
ऑटो स्केड्यूल टास्क में ये ऑटोमेटिकली खुद ही एडजस्ट करता रहेगा। ये इस सिनेरियो में काम नहीं करेगा कि आप प्लानिंग फेज में हैं और आप अपनी एक्टिविटीज़ जो है उसको लेके चल रही हैं और आपको डेडलाइन मिली, जिसका मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ऐसे कामों के लिए आपको अपनी एक्टिविटी को ऑटो से हटा के मैनुअल स्केड्यूल टास्क यूज़ करना पड़ेगा। इन प्रोजेक्ट you can display and hide your summary task or show summary task down to specific level of the task outline. That way you can focus on the task you need to see. So here we are looking at a project using the Gantt chart view. This is my Gantt chart view. So if you want to format how this view looks, go to the Format tab on the ribbon. The Format tab is a context sensitive tab, means it is related to the Gantt chart view specifically. For example, we are going to head over to show hide section on the right side of the ribbon. So if you want to hide the summary task, turn off the summary task. Here under show and hide section you have summary task, project summary task and outline numbers. So if I uncheck my summary task, you will see that purchase and test and development, these two summary tasks will disappear. I'm going to uncheck it. So did you notice? Now my summary tasks are not visible here. When I'll turn it on, summary task, सो यहाँ पे जो मेरी दोनों आपके जो टास्क हैं वो आपके सामने विजिबल हो गए हैं, प्रोजेक्ट परचेस एंड टेस्ट एंड डेवलपमेंट टास्क। एक और टास्क है जो बहुत यूजफुल होता है, लाइक आई वांट टू नो हाउ लॉन्ग माय इंटायर प्रोजेक्ट विल टेक टू कंप्लीट, like starting from the first activity to the end last activity. So when I turn on project summary task, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा, so you will see on the top of all my activities यहाँ पे एक और रो ऐड हो जाएगी which is called summary task. जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पे देखें इसका नाम इसने दिया project 1 और this project 1 is going to take 101 days to complete and it will start on 27th of April and will finish on 14th of September 2020. Why it has given task name summary जो task है इसको project 1 क्यों कहा? क्योंकि टॉप पे आप देखें मेरे जो प्रोजेक्ट है जो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसका नेम जो है प्रोजेक्ट 1 है। अगर इसका मैंने नेम कोई यूजफुल नेम दिया हो तो यहाँ पे इसको ये ऑटोमेटिकली वो नेम देता। बहरहाल यू कैन चेंज द नेम लाइक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे अब इसने इसको ऑटोमेटिकली ये नेम दे। इसको अगर आप नंबर्स असाइन करना चाहते हैं तो टॉप पे आप देखें आउटलाइन नंबर आपका चेक बॉक्स होगा, आप इसको आप क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट 1 फिर आपके परचेस एंड टेस्ट और जितनी आपकी एक्टिविटीज़ हैं इसको ऑटोमेटिकली ये नंबर असाइन कर देगा। देखें 2, 2.1, 2.2, 2.3 ऑटोमेटिकली डिफरेंट नंबर्स अकॉर्डिंग टू दी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर और एक्टिविटी लिस्ट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसने इसको क्रिएट कर दिए। एक और बड़ी यूजफुल ऑप्शन है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सिमिलर इन योर प्रोजेक्ट आपके पास अभी तो हमारे पास 2 लेवल्स पे जा रहा है आपका प्रोजेक्ट, यानी आपके पास परचेस एंड टेस्ट है, उसके नीचे आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं। आप जब खुद प्लान करेंगे प्रोजेक्ट तो एक्टिविटीज़ के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, एक्टिविटीज़ के अंदर और एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर उसके अंदर और एक्टिविटीज़ होती हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं अपने प्रोजेक्ट को मैक्सिमम, ऑब्वियसली आपकी प्रेजेंटेशन जब होगी टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ, आपके प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि माइक्रो लेवल तक जाके प्रेजेंटेशन दें, क्योंकि जब आप माइक्रो लेवल पे जाके प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो कभी भी प्रेजेंटेशन या आपकी वो मीटिंग जो है आपको बेनिफिट नहीं देती, क्योंकि आपका स्पॉन्सर इंटरेस्टेड नहीं होता आपकी माइक्रो वर्क में। आपका स्पॉन्सर देखना ये चाहता है कि कौन सा काम किस डेट पे ख़त्म हो रहा है, मेजर जो माइलस्टोन्स जिसे कहा जाता है। लाइक हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट एंड परचेस एंड टेस्ट ये मेरे माइलस्टोन्स हैं।
तो इसके नीचे जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं वो मैक्सिमम आप 2 लेवल्स तक शो करना चाहते हैं या 1 लेवल तक शो करना चाहते हैं, इसके ऊपर आप नहीं करना चाहते, डिस्प्ले नहीं करना चाहते अपने प्रोजेक्ट को। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अभी तो हम लोग फॉर्मेट टैब में है, यू नीड टू क्लिक ऑन व्यू टैब। अंडर व्यू टैब you have a data section. In this data section you have outlines, so you need to just click on the outline section. So all you can see we have level 1 to level 9. If I click on level 1, तो यहाँ पे आप देखें मेरे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जो परचेस एंड टेस्ट के नीचे हैं और डेवलपमेंट के अंडर हैं, इसने ऑटोमेटिकली उसको कोलैप्स कर दिया, यानी वो डिसअपीयर हो गए। तो आपके लिए बड़ा आसान है कि प्रोजेक्ट डिलीवरेबल एक्टिविटीज विल take 12 days to complete, whereas purchase and test and these development, these are two I can see in this bar graph कि ये आपके जो है summary task है। Task 1 will take 10 days to complete, whereas development task will take 67 days to complete. There is no, for example, your management responses are not interested कि under purchase and test के नीचे हम कौन कौन से काम कर रहे हैं, वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि कौन से ये तीनों एक्टिविटीज़ कितने दिनों में कंप्लीट होंगी और इसकी स्टार्ट डेट और इसकी फिनिश डेट क्या होगी, तो ये आपके लिए सूटेबल होगा। तो इसके लिए व्यू में जाके आउटलाइन में जाके अब मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे 2 लेवल्स पे बताए, तो जब मैं टूल पे क्लिक करूँगा तो देखें इसने ऑटोमेटिकली इसको एक्सपेंड कर दी। डिलीटिंग टास्क वर्क्स अ लिटिल डिफरेंटली व्हेन यू डिलीट वर्क टास्क एंड समरी टास्क। नाउ वी विल लर्न हाउ टू डिलीट अ सिंपल टास्क एंड हाउ टू डिलीट समरी टास्क। Let's start by deleting a work task. So I'm just going to click on row number 12, that is activity hold final meeting. To delete that, you have a delete button in your keyboard. So press delete. So when you will press delete button, it will delete the record. It will delete the task. This is how the task goes away. Now if I click the task ID cell for summary task like development here in this example, under development summary task I have write program and test and debug task beneath it. So if I press the delete key on the keyboard, a dialog box will appear. This says development is a summary task. Deleting it will delete all its subtasks as well. So you can continue delete development and its subtask, or you have cancelled don't delete any task. So in this case I'm going to click on the continue task, continue radio button, और जब मैं OK प्रेस करूँगा तो it will not only delete the development summary task but it will delete its activities beneath it like write program and test and debug। जब मैं इसको क्लिक करूँगा तो आप देखें वो दोनों एक्टिविटीज़ जो हैं मेरी डिलीट हो गई along with the summary task। But what if you want to delete the summary task but not its subtask? So let's see how that works. So let's talk about इस तरह से जब हम करते हैं तो हमारे जो टास्क हैं वो सब टास्क के साथ सारे डिलीट हो जाते हैं, लेकिन आप नहीं चाहते, आप सिर्फ चाहते हो कि आप अपने समरी टास्क को डिलीट कर दो, आपके जो बाकी टास्क हैं आप उसको डिलीट ना करें। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, लाइक इन purchase and test summary task we have 3 tasks beneath it: procure hardware, test hardware and procure software tools. तो in this case आप क्या चाहते हो कि सिर्फ purchase and test डिलीट हो जाए, summary task ये एक्टिविटीज़ बच जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, इन तीनों एक्टिविटीज़ को क्लिक करें जो इसके अंडर आ रही हैं और क्लिक द टास्क टैब एंड अंडर टास्क टैब यू हैव स्केड्यूल टास्क एंड यू हैव दीज 2 ऑप्शंस आउटडेंट एंड इनडेंट। तो जब आप आउटडेंट बटन को क्लिक करेंगे तो ये जो आपकी तीनों एक्टिविटीज़ हैं ये वापस बाहर की तरफ आ जाएंगी। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखें अभी तो आपकी परचेज एंड टेस्ट के नीचे आ रही हैं एक्टिविटीज़, जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो अब ये एक्टिविटीज़ जो है इससे बाहर आ गई और परचेज एंड टेस्ट जो समरी टास्क है वो समरी टास्क अब नहीं रहा बल्कि एक सिंपल एक्टिविटी रही है। इसको डिलीट करने के लिए जब मैं इसको सिंपली डिलीट बटन प्रेस करूंगा अपने कीबोर्ड का तो सिर्फ ये टास्क डिलीट हो जाएगा। प्रोक्योर हार्डवेयर, टेस्ट हार्डवेयर एंड प्रोक्योर सॉफ्टवेयर टूल्स, ये तीनों टास्क जो है हमारे अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टूडेज लेक्चर। आई होप आप सबको बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, बट यू मस्ट प्रैक्टिस एट होम।